Okay, again, a morning or any afternoon, whatever the time you are watching the video. So, happy day to all of you. Class 7, in this video, I'm discussing about the section 2.5. How well have you learned about decimal numbers? And in this video, there is much lesser notes, and we will just discuss the concept verbally, and we'll move to our exercise 2.5 and complete it today in this video. So it is, as I have told you earlier, that is this concept is much from your 6th standard, and you have a very good idea of this. We have done many things with the decimal numbers in earlier. You have known about the decimal comparison of decimal numbers. You have known about their place value and their expansion also, and here you can see the table on the screen that I am taking directly help from the book. So you know the place value that when you have a decimal number like this 253.147, यू विल रीड इट एज, ठीक है, इसको 147 रीड नहीं करना कभी भी. द डेसिमल के बाद जो नंबर्स होंगे दैट विल बी रीड सेपरेटली, सिंगल डिजिट 147. सो 253.147. इसकी प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो आपका प्लेस है 3, इट इज़ योर वंस, 5 इज़ योर टेंस, 2 इज़ योर हंड्रेड्स. इसका आपको मतलब क्लियरली आइडिया 6th स्टैंडर्ड में आपने कर चुके हैं. ये डाउट होगा तो पूछिएगा. ओके, एंड डेसिमल के बाद 1, जो ये आपका 1 दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ योर 10th प्लेस, 1/10. ओके, this is your 100th place, and this is 1000th, means 1/10 means 1 out of 10 equal parts. Okay, this is 0.1 is 1 out of 10 equal parts. Okay, so for reference you can go through this table and understand the things. Now I am taking exercise 2.5, question number 1. So exercise 2.5 question number 1, it says which is greater. ठीक है, विच इज़ ग्रेटर मीन्स आप आपने 6th स्टैंडर्ड में लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स भी पढ़े थे. ठीक है, मीन्स डेसिमल के बाद जब सेम नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड एज लाइक डेसिमल्स, एंड डिफरेंट डिजिट प्रेजेंट होते हैं तो अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं. यहाँ पर 0.5 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट प्रेजेंट है. यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स प्रेजेंट हैं. सो इट इज़ दीज 2 आर अनलाइक डेसिमल्स. आप इनको कंपेयर करने के लिए, आपको ग्रेटर बताना है, कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए आप इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं. सो कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, अगर लाइक डेसिमल्स में आप कन्वर्ट करें, सो कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स व्हाट यू विल गेट 0.50, है ना. मीन्स जितना हायर नंबर ऑफ डिजिट जो प्रेजेंट होता है, जैसे 0 प्रेजेंट, 2 डिजिट्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर भी मुझे 2 डिजिट बनाने हैं, तो 0.50 मैंने कर दिया और 0.05. नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ 0.50. पॉइंट के बाद 50 है. ओके, 50 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 05 है. सो विच इज़ ग्रेटर? सो 0.5 इज़ ग्रेटर. ओके, और आपको ये भी पता है कि कंपेयर करने का तरीका क्या होता है. आप पहले डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो डिजिट्स प्रेजेंट होंगे उनको कंपेयर करेंगे. अगर वो सेम है तो डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट होगी उसको कंपेयर करेंगे. डेसिमल के बाद यहाँ 5 प्रेजेंट है, यहाँ पर 0 प्रेजेंट है, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चलता है कि 0.5 इज़ ग्रेटर. लाइकवाइज हेयर these are like decimal itself. So 1 1 similar. डेसिमल के बाद आते हैं, डेसिमल के बाद यू हैव 3 here, you have 4 here. So it is clearly understood that 1.49 is greater. So this is the way of comparing the numbers that you learned in smaller classes as well. Okay, now moving toward the question number 2, it is expressed as rupees using decimals. ये भी आपके पास decimals चैप्टर में, चैप्टर क्लास 6 में, यहाँ पर तो in this 7th standard book you have 1 or 2 questions. class 6 में आपने बहुत सारे questions solve किए हैं इससे related. So I have explained that earlier in that also, but if you have doubt you can ask me. Okay, so here is expressed as rupees using decimals. So you know to express to convert these units, we have length
for length we use meter, kilometer, है ना, and for measuring weights we use gram, kilogram and the gram, ठीक है ना, milligram, the converted into that, and likewise we use other units also for the measuring, ठीक है, measurement के लिए. Here you have to convert into rupees using decimal, so you know that paise 7 paise will be converted into rupees when you multiply by it 1 by 100, because it is the 7 paise is 1 by 100 means 1 paise is equals to 1 by 100 rupees. Okay, as you know that 100 पैसे में 1 रुपये होता है, मैंने पहले भी अच्छे से तरीके से समझाया हुआ है. 1 रुपये में 100 पैसे होता है, ठीक है. इट मीन्स 1 पैसा जो है इट इज़ 100th पार्ट ऑफ अ रुपी. समझ रहे हैं आप? 1 पैसा जो है इट इज़ 100th पार्ट ऑफ रुपी. देयरफॉर मैंने आप इसको ऐसे लिखा है 100th ऑफ रुपी, 1 पैसा. सो लाइकवाइज 1 पैसे इतने हैं तो 7 पैसे कैसे मल्टीप्लाई करके निकल जाएंगे. एंड 7 बाई 100 है तो डिनोमिनेटर में बिकॉज 2 zeros प्रेजेंट है, सो लेफ्ट से काउंट करके 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल प्लेस करेंगे. दिस इज समथिंग दैट यू हैव लर्नड इन अर्लियर स्टैंडर्ड ऑल्सो, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन मैं इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ड्रॉ करेंगे क्लियरली. और इसका मतलब समझिए लेंथ कन्वर्जन, ये लेंथ कन्वर्जन के लिए बनाया है मैंने, लेकिन ये वेट के लिए भी यूज़ होता है. और मीन्स किलोमीटर है तो किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, ठीक है. सो इट इज़ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर. ओके, this is this arrow is showing division by 10, divided by 10. 10 means at each step, ठीक है. ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था और कन्वर्जन के लिए टेबल भी बनवाई थी. सो अगेन फॉर योर रेफरेंस, जब आप इधर मूव कर रहे हैं तो आप डिवीज़न करेंगे, ठीक है, हायर की तरफ जा रहे हैं. जब आप इधर मूव करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे. एट ईच स्टेप, फॉर ईच स्टेप यू विल मल्टीप्लाई विद 10. इट मीन्स अगर मैं मीटर और किलोमीटर की बात करूं जो आपके लिए मच फेमिलियर है, मीटर एंड किलोमीटर. सो व्हेन यू हैव 2 किलोमीटर और मैं आपसे पूछूं कि ये कितना मीटर होता है, सो यू विल से दैट 2 किलोमीटर इज़ 2000 मीटर, क्योंकि आपने कितने स्टेप जंप किया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप पर आप मीटर पर आए हैं. देयरफॉर आपने 2 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. एट ईच स्टेप 10 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यू गेट 1000. सो इट विल बी योर 2000 मीटर्स, है ना. इस तरीके से ही अगर आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, यू विल डिवाइड बाय 10 एट ईच स्टेप, मीन्स आप 1000 से डिवाइड करते हैं. सो इसके भी क्वेश्चंस आपने 6th स्टैंडर्ड में बहुत सॉल्व किए हैं. सो देयरफॉर आई एम नॉट गिविंग मच एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आई हैव सोल्व्ड फॉर यू, यू कैन सी हेयर, एंड द अदर पार्ट you will do yourself. Much simple explanation, much simple exercise it is. The question number 4 is your express in kg. You will do yourself, okay? और बहुत ही सिंपल है. 4 kg, क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट है 4 kg 8 ग्राम, तो आप 8 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन फिर 4 kg से ऐड कर देंगे. Moving toward the question number 5, write the following decimal numbers in the expanded form. So क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सेकंड जो आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, उसका सॉल्यूशन ये है. इट इज़ मच सिंपलर. मैंने इसको करने के लिए जो आपको मैंने कन्वर्जन के लिए डायग्राम बनाया है उसी का यूज़ किया है. यू कैन रेफर टू दैट. And this is your question number 5 first part, the decimal expansion. You know that this is ones place, this is tens place, this is 1/10, therefore 0 is multiplied by 1 by 10, plus this is 100th, 3 is multiplied by 1 by 100.
Likewise, you can do the other decimal expansions. And question number 6 is write the place value of 2 in the following decimal numbers. It is same. And question number 7, 8 and 9. The other questions I want you to try yourself, and much simpler questions. No, I think no doubt will be there. But if you have any doubt, just let me know. Okay. So this is all for today, class 7. In the next class, we will discuss multiplication of decimal numbers, and we'll try to complete our chapter. Okay. So thank you, class, for watching. Stay happy and stay safe at home. Thanks to all of you.